most unfortunate. We have observed in 1 or 2 cases yesterday also when we were dealing with the death reference, we observed certain things and that is inconclusive. But fact of the matter is that हिंदुस्तान में सच बोलता नहीं है आदमी, सब तो सर्कमस्टांसेस खुद ही बोल रहे हैं और खुद आप सीनियर हो सर। नहीं सर, थोड़ा सा देखें इसमें। हाँ। डे 1 में अगर सस्पिशन होता है, व्हाट इज हैपनिंग सर? जी बताइए। लाइफ सेंटेंस 302 में और 302 में 5 years आ रहा है सर। जी इट्स अ प्रोसिक्यूशन हैज नरेटेड सर। पैराग्राफ 3 सर। पैराग्राफ 3 जी on 5/11/2020 at a deceased has gone to his agricultural field at village Gada Gondi, Machera in the morning of next day at 9:30 a.m. Her wife, Jhanko Bai, went to field where she saw the beheaded body of the deceased lying in hut, covered with satri, quilt or mattress made from old clothes, and blood spots on clothes, blanket and ground. She informed Rakesh, Lalita and Binju Bai and other villagers. Srimati Janko Bai lodged Dehati Nalchi in Marg intimation at about 2:10 p.m. and 2:45 p.m. on the same day. Thereafter, first information report was registered. A spot map was prepared. Decapitated body, blood-stained clothes, earth and simple were seized. During investigation on 7/11/2020, on the basis of suspicion, accused was interrogated. His disclosure statement was recorded. He led the police the well of Buddhe Singh, where the severed head was thrown and axe used for committing the murder. Severed head and axe were recovered from the said well and room of the accused at village Gada Gondli. Postmortem, severed head and body was conducted. In DNA test, it was found that severed head and body were of deceased. Blood found on handle of axe recovered from accused was of deceased. Motive behind murder was to get rid of his family sufferings, which allegedly was the result of black magic allegedly practicing on him. This is the case of the prosecutions. आपने तो खुद ही समझ लिया केस को हमसे बेहतर। कुल्हाड़ी उससे जब्त हो रही है ना। हाँ सर, on the day 1 there was no suspicion. नहीं, see, this is a case of circumstantial evidence. ठीक है, मोटिव ये आ गया ब्लैक मैजिक, रिकवरी हो गई एक्स की जिसपे उसी का मृतक का खून है, डीएनए से, प्लस सीवर्ड हेड भी आप ही की इंस्टेंस पे रिकवर किया गया है। और ऐसा नहीं है कि जहां पर धड़ पड़ा हुआ था वहां पर सर पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है, डीएनए रिपोर्ट है, डीएनए रिपोर्ट तो इनके दैट इज जस्ट करेक्ट। एक्स का ब्लड और सीवियर हेड का ब्लड, हाँ, उसका डीएनए है। सब तो सर्कमस्टांसेस खुद ही बोल रहे हैं और खुद आप सीनियर हो सर। नहीं सर, थोड़ा सा देखें इसमें। हाँ। डे 1 में अगर सस्पिशन होता है, व्हाट इज हैपनिंग सर? Merely on the basis of memorandum statement, they start the investigation. That is true. That is most unfortunate. We have observed in 1 or 2 cases yesterday also when we were dealing with the death reference, we observed certain things and that is inconclusive. But fact of the matter is that हिंदुस्तान में सच बोलता नहीं है आदमी, झूठ बना दिया जाता। नहीं, झूठ बना दिया गया तो फिर रिकवरी क्यों हो गई? रिकवरी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रिकवरी के गवाह हॉस्टाइल हैं। नहीं, 14-15 दोनों जो है इंटरेस्टेड विटनेस हैं। पहले दिन भी आ गए थे वो लोग, और एक गोटवार है PW15, और जो उसने इनको नोटिस दिया था कि पहुंचो पुलिस वाले बुला रहे हैं। नहीं ठीक है, वो कोटवार का काम है, पढ़िएगा कोटवार में कहाँ आया है, पढ़िएगा उसका क्रॉस पढ़िएगा। PW14 इंडिपेंडेंट विटनेस बोल दिया है। इसमें एक और चीज है कि कहते हैं एक्स से ब्लड है, एक्स से ब्लड जो उसके पेट पे, अगर उसने एक मारा था एक्स से तो उस पे ब्लेड में आना था, उसमें ब्लेड में ना आके बैट में ब्लड है। चलिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये PW14 दुर्जन बन के ठेकेदारी का काम करता है। इसका कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? ये सर इसमें बताना चाह रहे हैं हम कि पैराग्राफ 8 में क्रॉस एग्जामिनेशन में ठेकेदारी का काम करता है। मेरे पास ग्राम पंचायत आदि के भी ठेके हैं। स्वतः कहा मैं रोड वगैरह भी बनाता हूँ। मैं मेहताब नागले को जानता हूँ। PW15 जो मेहताब गांव का कोटवार है, गांव का सरपंच केवल डुमडाम है। टुमडाम है। ये कहना गलत है कि मेरे कोटवार सरपंच से अच्छे संबंध है। मैं आज बाइक से अकेले न्यायालय आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं आया। मेहताब अपनी अलग गाड़ी से आया। मुझे न्यायालय में आने का नोटिस 4-5 दिन पहले मिला था। मुझे उक्त नोटिस मेहताब कोटवार जो आज साथ में आया है ने लाकर दिया था।
ठीक है, कोटवार का हाँ। काम है नोटिस सर्व करना। पैराग्राफ 10 में देखें सर। जी 10। भोजन के ये कहना सही है कि 2 बजे साइड में आकर पहले अपने घर गया, वहां जाकर मैंने भोजन किया। उसके बाद कोटवार ने मुझे फोन करके बताया कि आपने यहाँ ऐसी घटना घट गई है, रामजी को किसी ने कुल्हाड़ी से मारकर सिर ले गया है। ये घटना जिस दिन रिकवर हुई थी उसकी बेहेडेड बॉडी जब्त का बता रहे हैं। हाँ यह सही है कि सूचना मिलने के बाद मैं कोटवार के पास पहुंचा। समय कोटवार नागले के शव के पास उपस्थित था और पुलिस भी वहीं पर था। यह सही है कि 2 बजे दोपहर में घर आने के पश्चात फिर घर में भोजन करने, कोटवार मेहताब नागले से बात करने, घटना स्थल तक पहुंचने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर 3 बजे पहुंचने के बाद मैंने पुलिस वालों से बातचीत की इसमें थी। कहाँ आ गया कि मेमोरेंडम उसका गवाही जो है वो झूठी है? छोटी यह है सर कि मेरा कहना है कि ये लोग पुलिस के बुलाने पे पहले दिन 6 हर तारीख को आ गवाह गए पुलिस थे के और बुलाने 7 पे, तारीख तक रहे। सब पुलिस के बुलाने पे ही गवाह जाता है, जो वहाँ होता है वो तो गवाही देता ही नहीं है। तो वहां के लोग, ये तो एविडेंस में आना था कि हमने फला फला लोगों को अप्रोच किए जो थे वहां नहीं पर नहीं नहीं, और उनसे वो अपना आईओ से पूछना चाहिए था, ये थोड़ा ना बताएंगे। तो आईओ से आ जाइए, आप PW 16 आईओ जी, हमने राकेश भारती से क्या पूछा आपने इस बारे में क्रॉस में? ये सब पैराग्राफ 13 देखें। पहले 11 पढ़ लें, उसके बाद में 13 पढ़ लेते हैं। जी सर। ये कहना सही कि पुलिस ने पैराग्राफ 15 पढ़ रहा था मैं। नहीं, पहले 11 पढ़े। उक्त दिनांक को उक्त दिनांक को आरोपी नंदराम गोस्वामी से साक्षी दुर्जन बनके और मेहताब नागले के समक्ष मृतक रामजी गोस्वामी का कटा हुआ सिर, जिसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, को जब कर सीलबंद किया था। जब्ती पत्र 27 है, जिससे सीसी भाग रहता है और इसी भाग पर नमूना सील। उक्त दिनांक को आरोपी नंदराम गोस्वामी को साक्षी मेहताब और दुर्जन के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र P28 तैयार किया था, जिसके सीसी भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। ठीक है, आप पहला 15 क्या पढ़ रहे हैं? PW 15 का बता रहा था समझ। हाँ। ये दोनों अगर चांस विटनेस भी नहीं है, ये इम्प्लांटेड विटनेस है। अरे भाई, कोटवार तो हमेशा ही रहेगा। हाँ तो वो कोटवार is not a planted witness. It is part of his duty to Yes. make report of any untoward incident taking place in his village. And as a part of duty, if he is accompanying the police, what is wrong in it? He is not a planted witness. बट ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट। अरे आपने ये बताया कि इसकी मेहताब की नागले की दुश्मनी थी इससे, ऐसा कहीं आया है क्रॉस में? ऐसा नहीं suggestion- कोटवार के क्यों झूठ अलावा बोल और रहा भी है? लोग थे सर। ऐसा suggestion- कोटवार विल से व्हाटएवर द पुलिस अथॉरिटी। ऐसा नहीं है, कोटवार इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द पुलिस। जो हायरार्की है, ही इज द इन्फॉर्मर ऑफ विलेज सर। he is an informer, but at the same time he is not subordinate to the police. He is subordinate to the district administration. No, Revenue- but revenue it department. has been seen, sir. They are all the informations are been of the village are been given by the Kotrar, and the police relies on him without any doubt. He is the man of the police authority. चलिए, ऐसा कुछ आया नहीं है। पुलिस अथॉरिटी नहीं होता, वो कलेक्टर हमारा ये कलेक्टर के अंडर होता है। हमारा ये कहना है सर कि डे 1 में जब ये हुआ था, सस्पिशन हो के एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट से इन्होंने हमें मुल्जिम बना दिया। उसके बाद एवरीथिंग इज इम्प्लांटेड। हैड इट बीन अ केस कि ठीक है सर। एग्जिबिट P1 और P2 जो है, हाँ। उसमें जो मर्ग इंटीमेशन है उसमें कोई सस्पिशन भी नहीं बताया कि हमारे पे शक है उनको, जो बाद में स्टोरी डेवलप कर दी कि ब्लैक मैजिक है, ये है, वैसा कुछ नहीं था। एग्जिबिट P1 और मर्ग इंटीमेशन जो है उसमें कहीं पर भी नहीं है कि हम पे सस्पिशन ड्रॉ किया। विद इन 24 आवर्स दे हैव डेवलप्ड अ स्टोरी कि ये सब करते हुए। ठीक है सर, मेरिट पर चाहिए। देन आई विथड्रॉ सर। Shri Azullah Usmani, after arguing at length and in view of evidence of PW 14 and 15, raised for withdrawal of the IA. Accordingly, IA 29199, 1415, DNA report and FSL report placed for withdrawal of IA. IA 29199/23 is dismissed as withdrawn. Obliged.